Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Today I am going to explain you the second part of the chapter number 14, that is Basava's form. Before this I have explained you the first part. Hope you all have understand nicely. Before I explain you the second part, I am going to give you a small recap of the first part. Now in the first part we have learned two new words, that is khunti. Here you can see this is khunti, and one more new word was kurgi. That is on the next page, page number 114. Now what we have read in this first part, that there is a boy. एक boy है वसावा, उसके father क्या है? Farmer है. वो कहाँ रहते हैं? बेलविंका village, कर्नाटका में. And in the month of July, his father is growing the onion seed, onion crops. Now his father is first preparing the field. How he is preparing? By the help of a खुंटी. खुंटी के हेल्प से उसका फादर फार्म को क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं और उसकी मिट्टी को, सॉइल को लूजन कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से क्रॉप ग्रो हो सके. नाउ गो ऑन पेज नंबर 114. Now the second topic is sowing the seeds. Now here you can see that Basava's father, he is using the kurgi. What is kurgi? I have told you in the first part that in our area it is called हल. इसको हिंदी में हल बोलते हैं. बुलक्स के पीछे इसको लगा दिया जाता है और फार्मर पीछे पीछे चलता है और सीड्स मतलब बीज जो होते हैं उसको वो फील्ड में डालता जाता है. नाउ बसवा इज ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस वर्क. वो भी ये काम करना चाहता है, पर उसके अप्पा ने, फादर ने क्या बोला? देन नाउ यू आर नॉट वेरी ओल्डर टू डू दिस वर्क. अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप इस काम को कर सको. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्प्राउट्स अपीयर. स्प्राउट्स मीन्स जो उसने बसवा के फादर ने जो सीड्स डाले थे, अब उसमें से छोटे छोटे पेड़ आ गए हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर स्मॉल प्लांट्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. नाउ वी विल गो लाइन बाय लाइन. इट इज नाउ 20 days since the seeds were sown. The onion plants have started to sprout. Along with onion plant, weeds have also come up. Now you can see here, in this picture, that onion plants have come out, and with that weeds is also there. What are weeds? Weeds मतलब जो extra grass सॉइल में क्रॉप्स के साथ जो निकल आती है, जो एक्स्ट्रा ग्रास होती है, उसको वीड्स बोलते हैं. अभी कितने दिन निकल गए सीड्स डाले हुए? 20 days ओवर हो चुके हैं. छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो फील्ड में आ गए हैं और उसके साथ में वीड्स भी आ गए हैं. वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड gardens without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and I, we will help Appa to take out the weeds. Now in the field weed has grown, and in the garden also sometimes it come with the flowers and other plant. Now what they have to do? Appa says that we must remove. अभी बसवा के अप्पा ने, फादर ने क्या बोला कि हमको इसको निकालना पड़ेगा. किसको? वीड्स को. जो एक्स्ट्रा ग्रास हो गई है, एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो हो गए हैं, उसको उनको फील्ड से निकालना है. वाई? बिकॉज दे विल टेक ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स. अगर वो उसको नहीं निकालेंगे तो वो जो फील्ड्स पे पानी डाल रहे हैं और जो फर्टिलाइजर मीन्स खाद, जो क्रॉप्स को अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, अच्छी क्रॉप हो सके, उसके लिए क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर्स डालते हैं. तो वो पूरा वीड्स ले लेंगे. If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. अब बहुत सारे weeds होंगे तो onion plant क्या होगा? हेल्दी नहीं होगा. हेल्दी मीन्स अच्छी क्रॉप नहीं होगी, अच्छे ओनियंस नहीं निकलेंगे. Now who will help Appa? Amma, uncle and I. Amma means Basava's mother. Uncle means his father's brother, and he himself will going to help the Appa to take out the weeds. Now we will proceed for the next topic. Now the next topic is growing plants. Now in this picture you can see how the plants have come out. Means before the plants were small. Plants क्या थे? छोटे थे. अभी plants बड़े हो रहे हैं. I am happy to see the plants growing. They are tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onions are ready to be taken out. I am happy. Now who is happy? Basava is happy. Why? Because
द ओनियन प्लांट्स हैव बिकेम टॉल। ओनियन प्लांट्स क्या हो गए थे? बड़े हो गए थे। कितने बड़े हुए थे? बसावा के नीज तक, घुटने तक पहुंच गए थे। नाउ लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो। अब बसावा क्या बता रहा है कि ओनियन के पेड़ के जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो कौन से कलर की हो गई हैं? येलो कलर की, और वो सूखने लगी। ड्राइंग मीन्स सूखने लगी हैं, जिसका मतलब क्या है कि ओनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। मतलब ओनियंस अब रेडी हो चुके हैं, उनको अब फील्ड में से बाहर निकालना है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि प्लांट्स पहले छोटे थे, पहले पिक्चर में छोटे थे, अब इस पिक्चर में वो बड़े दिख रहे हैं। तो बसावा बहुत हैप्पी है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. Now what is Basava telling? That everyone at home, मतलब घर में जितने भी लोग हैं, आप सबको काम करना पड़ेगा। कहाँ पे? फील्ड्स में काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू टेक आउट द ओनियंस। उनको प्याज जो है उसको बाहर निकालने पड़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है वो? कि इट शुड बी डन एट द राइट टाइम। वो काम सही टाइम पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर उसको सही टाइम पे नहीं निकाला, इफ ओनियंस आर नॉट टेकन आउट एट द राइट टाइम, दे विल रॉट इन द ग्राउंड। रॉट मतलब वो अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे ग्राउंड के अंदर ही इटसेल्फ। एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। और उनका जो हार्ड वर्क है, पूरा जो हार्ड वर्क उन्हें किया है, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि ओनियंस जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर उनको बोया जाता है। और उसको कैसे? ऊपर से निकाल के उसके प्लांट को कट करके और फिर ओनियन को यूज किया जाता है। Basava helps the father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बसावा जो है अपने फादर को फील्ड में हेल्प करता है। आप अपने एल्डर्स को घर में किसी को हेल्प करते हो, क्या हेल्प करते हो? तो दिस यू कैन राइट बाय योर ओन। कुछ भी लिख सकते हो आप कि कुकिंग में, घर को साफ कराने में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, किसी में भी आप उनको हेल्प कर सकते हो। नाउ this was the end of the part 2. Hope you all have understand the chapter nicely. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, you can ask in the comment box. Now this was the end of the part 2. Have a nice day. Thank you.